हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, सो हम लोग ऑनलाइन फाइनलाइजेशन कर रहे हैं। सो यू हैव टू सिलेक्ट द कंपनी। ओके, आफ्टर सिलेक्टिंग द कंपनी वी हैव डन विद द प्रॉफिट एंड लॉस साइड, राइट? हैव टू चेक विद दिस F1. Okay, so we have done with the printing in stationery, right? We were left with rent and salary and bonus and traveling expenses. Okay, we were left with three. So we'll start with the rent. While finalizing of your account in the year end, you have to check whether you have paid all the month of rent or not. So click on the rent account. When you will click, you can see over here that is in April, May, June, July, August. आप लोग ने एवरी मंथ का रेंट पे किया है, लेकिन आप यहाँ पे अगर देखोगे ना, सो यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। दो चीजें क्या ध्यान में रखनी है? जैसे कि लोग का डेट क्या है पहले से रेंट पे करने का। व्हाट इज द डेट ऑफ रेंट when they are paying, like every of second, because on the 2nd April they have paid the rent, and they have passed the compound entry, that is salary bonus both have एक साथ। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये लोग ने दोनों एक साथ एंट्री पास किया है। सो हम लोग यहाँ पे एक साथ चेक करेंगे, दैट इज कंपाउंड एंट्री पास किया है। सो यू हैव टू सी ओवर हियर दैट इज ऑन 2nd April they have paid the salary and rent also. That means you can say there is a due date, that is every month of 2nd, हर महीने की 2 तारीख को ये लोग पेमेंट करते होंगे। क्लियर हुआ? मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अप्रैल का, मतलब ये जो आपने 2nd अप्रैल को जो पेमेंट किया है वो कौन से मंथ का होगा? फॉर विच मंथ दे हैव पेड इन द अप्रैल? मार्च। March, that is last financial year. Okay, but in the last financial year I have not paid the salary, I have paid in the current year. That means what should I pass the entry in the last year? आउटस्टैंडिंग। Yes, outstanding. That means you can pass the entry, that is salary account debit to सैलरी salary ऑफ। payable, या फिर outstanding salary or outstanding rent you can pass that at that entry. Okay. So अगर मैं लास्ट ईयर में अगर एंट्री पास कर रही हूँ, दैट इज सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी या टू आउटस्टैंडिंग रेंट, जो भी रहेगा वो, मतलब जब मैं ओपनिंग में उसका पेमेंट करूंगी तो क्या ये एंट्री राइट है? इज दैट एंट्री इज करेक्ट फॉर द करंट मंथ? Okay, before that, we'll see how much opening balance is there in the salary account and the rent account. Okay, just press F4 and just open the rent account. So we'll come to know, just change the period, F2, space enter, space enter. So there is a closing balance, that is 62,000, 76,000. Okay. Okay, just pull down. Okay, that means यहाँ पे rent नहीं आया. So just check the ledger of outstanding. If there any ledger that is outstanding called outstanding. Yes, there is outstanding rent also and outstanding salary also. We'll see one, that is outstanding rent. They have opening balance in the rent account, outstanding rent, that is opening balance दिख रहा है मुझे। मतलब ये जो ओपनिंग बैलेंस आपको दिख रहा है, ये शुड बी नलिफाइड इन द करंट ईयर आफ्टर पेइंग ऑफ। क्लियर? यस मैम। Okay, so just check out the salary also, that is outstanding, F4, outstanding salary. So outstanding salary also is there as a opening balance, that is 18,000. So before paying, like after paying off, it should be nullified over here. So you have to pass the entry, that is called, just change the period, F2, enter, space enter. ठीक है?
So over here on the 2nd April, they have passed the entry called salary and bonus account debited, rent account debited to HDFC Bank. So it's not a right entry. You have to change the name. It's called outstanding. Outstanding salary 18,000 and outstanding rent. So now you Outstanding can rent. see that there is a balance called zero. Current balance zero हो गया, outstanding salary में balance zero हो गया, and outstanding rent में भी balance zero हो गया. Clear everyone? That means you have to see that, always check it. In the last year, in the March, it was outstanding. So in the current year, in the April month, you should be nullified this after paying off. So अभी यहाँ पे हम लोग ने पे कर दिया, तो लास्ट ईयर मैंने क्या एंट्री पास किया होगा एज अ मार्च में, सैलरी या बोनस मैंने कुछ भी पे नहीं किया है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 18,000, वहां पे मैंने वो पास किया था. Outstanding, sir. Yes. For the rent also, I have passed the same entry, that is rent account debited to outstanding rent. But in the current year, I have paid that amount. When I am paying it, it should be nullified this account. So just enter it. So I have changed the account name called salary and bonus account. It was there before. I have changed to outstanding salary for both amount. Okay. Just enter. Now go to the ledger account F4 and just open the outstanding rent account. Now you can see there is the opening balance was 86,000. That means 6,000 was payable. But in the current year, that is 6,000 you have paid, that is payment. Can you see, guys? That means now you can say that there is no outstanding is remaining. That is closing balance is nil. मतलब मैंने पे ऑफ कर दिया जो मेरा अमाउंट था वो. जैसे आपने आउटस्टैंडिंग रेंट का देखा, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, सैलरी का भी चेक कर सकते हो. यहाँ पे F4 करने का, F4 करने के बाद जस्ट टाइप आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड opening balance was 18,000 payable, मतलब salary I have to pay 18,000 and in the current year I have paid that. That is payment 18,000. So closing balance is zero in the outstanding balance. Clear everyone? Okay, so we'll go for next. We'll see each and every transaction. We have done with this. April month का देखो यहाँ से हट गया क्योंकि वो हम लोग ने नलीफाई कर दिया, वो सैलरी नहीं है मेरा, वो आउटस्टैंडिंग था तो उसको मैंने क्लियर कर दिया. अभी मई मंथ से देखो, आप एवरी सेकंड को आप पेमेंट करते हो, जस्ट रिमेंबर दैट, एवरी मंथ ऑफ सेकंड. सो इन अप्रैल मंथ का सैलरी और रेंट विल पे इन 2nd of May. So just check it over here. Just read out the narration, that is they have told you salary and rent paid for the month of April. अप्रैल का 2nd May को आपने पे ऑफ किया है सैलरी, बोनस एंड रेंट. सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज पेमेंट में हुआ है ये. क्लियर हुआ ये आपको? Yes. Okay, so Yes, we'll see ma'am. the next. So just go on June. So on 2nd June, they have paid for the month May. See, 2nd June, they have passed the entry salary account debit bank to rent account. like यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों आपने डेबिट किया है एक्सपेंसेस को एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट, बिकॉज इट्स अ पेमेंट एंट्री. चेक इशू फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी एंड रेंट फॉर द मंथ ऑफ मे. दैट मीन्स मे का पेमेंट जून में हो रहा है. सो एवरी मंथ का आपको ऐसे ही चेक करना है, बिकॉज ये लोग का रेंट का पहले तो डेट चेक करने का कि सैलरी का डेट और रेंट का डेट, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर इट. सो देयर इज अ ड्यू डेट कॉल्ड एवरी मंथ ऑफ 2nd. सो वो लोग हर महीने की 2 तारीख को पेमेंट करते हैं. सो आपको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि लास्ट मंथ का पेमेंट तो मैंने नहीं किया होगा, क्योंकि ये एवरी ईयर इशू होगा आपको. इन द एवरी ईयर यू विल गेट दिस इशू, दिस टाइप ऑफ इशू. दैट इज बिकॉज एवरी मंथ हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जैन का फेब में देंगे, फेब का मार्च में देंगे, लेकिन मार्च का तो अप्रैल में ही जाएगा एवरी ईयर. सो लेकिन मेरा फाइनेंशियल ईयर तो क्लोज होता है ना मार्च में, माय फाइनेंशियल ईयर विल क्लोज ऑन मार्च. सो एवरी ईयर लास्ट में आपको चेक करना है कि जो आपने लास्ट टाइम मार्च मंथ में जो आपने आउटस्टैंडिंग में डाला होगा, उसको अप्रैल मंथ में आउटस्टैंडिंग डाल के नलीफाई करना है. और
जब मेरा करंट ईयर का जब मैं लास्ट मंथ में पहुंचूंगी, दैट इज इन द मार्च, सो आई हैव नॉट पेड मार्च का सैलरी, तो मतलब आपको लास्ट मंथ का उसको आउटस्टैंडिंग में डालना पड़ेगा. सो सैलरी और रेंट में ये बहुत इशू आता है बिकॉज ये लोग सेम डेट को पेमेंट नहीं करते हैं. सो वो लोग का पॉलिसी होता है कि एवरी मंथ ऑफ दिस आई विल पे दिस अमाउंट. ओके, सो ऑलवेज आपको यहाँ पे चेक करना है कि आउटस्टैंडिंग वेदर यू हैव पेड इन द करंट ईयर ऑफ द लास्ट मंथ एंड द करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इन द मार्च मंथ में है या नहीं. आपको ये पूरा चेक करना पड़ेगा. क्लियर हुआ? सो विल सी वन Yes. बाय वन. जैसे यहाँ पे आपने देखा मई का जून में पेमेंट हो गया है. सो जुलाई का आप देख सकते हो. नरेशन देखो और डेट देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एंट्री तो राइट है. हम लोग को समझ में आया. मतलब आपको भी यहाँ पे जस्ट चेक आउट द नरेशन डेट एंड द करंट डेट, दैट इज जून मंथ का जुलाई मंथ में पेमेंट हुआ है. आफ्टर दैट अगस्त में है check issue for the payment of rent, salary and rent for the month of July. For the month of July, you have paid in the 2nd August. August. Yes. Now 2nd August का मतलब अगस्त मंथ का 2nd September को पेमेंट होगा. So just check it this. That is August, and this one that is 2nd September. Clear? Okay. So you have to check Yes. all transaction. तो यहाँ पे मेरा अक्टूबर का नवंबर में आया होगा, नवंबर का दिसंबर में आया होगा, दिसंबर मंथ का जैन में पे किया होगा, एंड फॉर द मंथ ऑफ जैन आई हैव पेड इन द फेब, एंड इन द मंथ ऑफ मार्च जस्ट ओपन द मार्च मंथ, दैट इज सैलरी एंड रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ फेब इन द मार्च. लेकिन मार्च मंथ का मेरे पास तो एंट्री नहीं ना. मार्च में 2 एंट्री होना चाहिए बिकॉज ऑफ मतलब मार्च में हम लोग एक तो पेमेंट करते हैं फरवरी मंथ का, Feb का. वो होना चाहिए. और यू हैव टू मेक अ एंट्री एज अ बुक एंट्री, दैट इज यू हैव टू पेबल द सैलरी अमाउंट. यू हैव टू पास द एंट्री दैट इज सैलरी पेबल और रेंट पेबल इन द करंट मंथ. देन ओनली यू कैन पे इन द करंट ईयर, इन द नेक्स्ट ईयर ना. जब मैं करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग करके बताऊंगी तब जाके आप नेक्स्ट ईयर उसका पे ऑफ करोगे ना, नलीफाई करके. तो आपको एवरी मंथ यही एवरी ईयर आपको यही चेक करना पड़ेगा. दैट इज इन द ओपनिंग बैलेंस वेदर यू हैव पेड, तो जस्ट चेक आउट द नरेशन और एंट्री एंड जस्ट पोस्ट आउट विद द आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी जो भी रहेगा वो. एंड द करंट मंथ में आपको क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर में लास्ट मंथ का दैट इज मार्च मंथ का आपको उसको आउटस्टैंडिंग डालना है. तो एंट्री क्या आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. एवरी एंट्री आया मतलब एवरी मार्च में आपको ये एंट्री पास करना ही है बिकॉज आपका पॉलिसी क्या है, एवरी सेकेंड ऑफ यू पे द सैलरी एंड रेंट. सो इन द मंथ ऑफ मार्च यू हैव टू पास द 2 एंट्री, दैट इज फेब का पेमेंट का एंट्री एंड सेकेंड वन इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ द 31st March एज ऑन. क्लियर हुआ? You can see over here that is in the January month. They have paid the December ka salary in the January, but in the Feb you can see they have told you like there is an increment. सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है और रेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे बढ़ाना है. सो दे हैव इंक्रीजेस दैट अमाउंट, दैट इज सैलरी एंड बोनस को 18,000 था, इट वाज इंक्रीजेस टू 22,000. इट वाज 18,000 ओनली. They have increased the 4,000 rupees. That is 22,000 इंक्रीमेंट हुआ है आपका फेब मंथ में. जैन में ही हो गया था इंक्रीमेंट, बट फेब में आपको उसका पैसा मिला है पैसा. और रेंट का भी इंक्रीमेंट हो गया है जैन में, दैट इज रेंट वाज 6,000 rupees एंड नाउ इट्स 8,000 rupees. क्लियर एवरीवन? You can see over here that is January, in the month of Jan there is a 6,000 rupees, but in the month of Feb, from Feb there is a 8,000 call. Okay. So that means now you understood that in the month of March you have to pass 2 entry, that is first payment entry of the March month, of the Feb month, and just press the alt I over here and pass the entry in the book entry, that is F7, because we have to pass the book entry. डेट चेंज करना पड़ेगा आपको. ओके, so entry will come over here, that is salary and bonus account debited. How much amount? 18 or 22? It will come 22,000. 22, No, sorry. 22 because increment हुआ है, so it comes to 22,000. Okay. Enter
by rent आएगा how much 8,000 not 8. 6,000 because increment हुआ है. So to outstanding salary it comes to 22,000 and outstanding rent. So in the every year in the month of March you have to pass this entry and called being salary for the month of March due but not paid, you can say. Clear हुआ? Because for the month of March it's due but not paid yet. And for this you have to change the date also. Just F2 the date, that is 31st March, because on the last date you have to pass this entry. In the every month of March you have to pass this entry if your policy is like you are not paying the salary or rent in the same month. If you are paying in the next month of whatever date, so you have to pass this entry in the last month. Clear? Done? So we have done with the salary and bonus account also and the rent also. Clear everyone? Yes, ma'am. Okay. So just note down this, last one entry. This one. You have to note down because you have to pass this entry. You have to remember this. Because the this depends upon your policy, depend upon your company's policy. Because if you are paying your salary and rent in the same month, so it will not pass. You have to not need to pass this entry. Okay, but if your policy is like you are paying the same month of salary in the next month, current month of salary in the next month, so you have to pass this entry in the every year of the last date, that is 31st March. Because MNC company was they do, they just pay off the same month का salary same month में, so वो लोग ये entry नहीं pass करते. But in the Indian company they have to pass because वो लोग तो salary 18-20 तक आता है आराम से, तो फिर ऐसे ही pass करना पड़ेगा. Okay. So Yes. we have done with the rent also, salary and bonus also. Okay, because together हो गया वो दोनों साथ में. That means only we are remaining with the traveling expenses. So just open it, traveling expenses. Only one transaction is there, that is 1456. Just read out the narration. Right है क्या? Entry is right. See, adjustment is saying, narration is saying that reimbursement of the expenditure by Sushil Kumar on audit 2. Total expenditure was done, that is 3,456 rupees. Okay, but entry is correct over here. That is traveling expenses to cash. It's correct because you have went for the audit tour also. So tour ka expenses traveling expenses में ही जाता है. So entry is right. But what about the amount? You have only posted the entry that is called 1456. But the total expenditure was done, that is 3,456 rupees. That means you can say there's a difference of rupees 2,000 rupees. So directly you cannot add on this. Directly you cannot rub this amount and directly 3456 you can type. You have to give the genuine reason for this. So just check out whether any account called there or not. Like you have to check whether Sushil Kumar account is there or audit tour account is there. पहले से आपने कुछ एंट्री पास किया है क्या वो लोग के नाम से, वो हम लोग को चेक करना पड़ता है पहले, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग चेक करेंगे. जस्ट प्रेस F4 ओवर हियर. चेकआउट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो हमने देख लिया. जस्ट चेकआउट सुशील कुमार. सुशील कुमार का ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं है.
दिख रहा है? नहीं है ना? सो जस्ट चेक आउट द दूसरा ट्रांजेक्शन। क्या चेक करने को बोला मैंने? टूर का कुछ है क्या वो चेक करो। देखो यहाँ पे है एक टूर एडवांस। There is a Hmm. ledger called tour advance account. That means the opening balance that is 2000. Just change the period. On the 1st Feb, there is the balance 2000 rupees. Just read out this narration. Advance given to staff Sushil Kumar for Ranchi to audit tour. That means you have given the advance to them. So जब आपने इसको एडवांस दिया था तो हम लोग ने यहाँ पे एंट्री क्या पास किया है? टूर एडवांस अकाउंट्स डेबिट टू कैश बैंक इन द पेमेंट साइड 2000 रुपीज. बट नाउ टूर एडवांस जो आपने दिया था, टूर इज कन्वर्टेड इन ट्रैवलिंग. आपका जो टूर था, मतलब आप टूर में जाने वाले थे, तो हम लोग ने आपको 2000 एडवांस दिया था. आई गिव यू द एडवांस बिकॉज यू वांटेड टू गो ओवर देयर. ओके, बट नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू ट्रैवलिंग बिकॉज आप जाके आए, अभी ऑडिट हो चुका है. Hmm. So now you have to change the name over here. That is टूर एडवांस अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा. किसमें? ट्रैवलिंग में. तो Traveling. आपका ट्रैवलिंग 3456 हो जाएगा. देखो ट्रैवलिंग के नीचे करंट बैलेंस कितना दिख रहा है? 3456. सो मेरा एडजस्टमेंट में भी उतना ही बोला था ना वहां पे, याद आ रहा है? ट्रैवलिंग के एडजस्टमेंट में क्या बोला था Yes. उसने? कि उन्होंने खर्चा किया है, टोटल एक्सपेंसेस जो हुआ है सुशील कुमार का, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज 3456. But in Hmm. that entry, only 2000 was recorded. Oh, sorry, only 1456 was 1456. recorded. Yes, 1456 वहां पे था. बट यहाँ पे हम लोग ने उसको 2000 एडवांस दिया था, तो एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग उतना ही खर्चा हुआ 1456 का, बट 2000 भी तो हुआ. सो नाउ यू हैव टू डू इज यू हैव टू कन्वर्ट योर टूर एडवांस टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, दैट इज 2000 रुपीज. क्लियर? सो आपका टूर एडवांस जो होगा वो नलीफाई हो जाएगा. Yes. एडवांस में कुछ बचेगा नहीं. देखो जीरो हो गया बैलेंस because tour advance is converted into traveling. So now just go on in the traveling side and just check it. So tour advance जो है वो आपका nullify हो गया, that is zero balance, and in the traveling expenses they have already increase हो गया वो 3456. Just open it. आप देख सकते हो यहाँ पे दो एंट्री होगा, एक तो 1456, but 2000 I gave you the advance in the month of Feb. Okay, for the month of Feb हम लोग ने यहाँ पे इन द मंथ ऑफ फेब आई गिव यू द 2000 एज अ एडवांस, एंड इन द मंथ ऑफ मार्च डन विद द 1456. 1456 रीइंबर्स्ड हुआ है, मतलब मैंने आपको 2000 ट्रैवलिंग का खर्चा दे दिया था कि 2000 में आप जाके आओ, लेकिन एक्चुअल जो एक्सपेंसेस हुआ दैट इज 3456 हुआ. सो आउट ऑफ 3456 आई गिव यू द एडवांस ऑफ ₹2000, बट 1456 आई एम गिविंग यू द नाउ. अभी आपने अपने जेब से खर्चा कर लिया होगा 1456, मैं आपको रीइंबर्स कर रही हूँ. वहां पे वही लिखा है, नरेशन आप पढ़ सकते हो. रीइंबर्समेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर बाय सुशील कुमार. उन्होंने जो रीइंबर्स किया है, उन्होंने जो खुद की जेब से खर्चा किया है 1456, वो अभी हम लोग ने रीइंबर्स किया हुआ है. नाउ रीइंबर्स मतलब वापस देते हैं हम लोग पैसा. पहले आप अपनी जेब से खर्चा करो, बिल दिखाओ, हम लोग आपको पैसा वापस देंगे. दैट इज रीइंबर्समेंट. क्लियर एवरीवन? So we have done with the profit and loss account. We have checked the accounting charges over here. Audit fees we have seen. यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि डेबिट डिविडेंड भी था, उसको हम लोग ने ट्रांसफर किया हमारे इन्वेस्टमेंट में, बिकॉज वो डिविडेंड मेरे लिए डिविडेंड नहीं था, इट वाज माय इन्वेस्टमेंट इनकम. सो आई हैव ट्रांसफर इन द इन्वेस्टमेंट इनकम. इट वाज यहाँ पे एक और था, क्या था? फीस रिसीव था एक. So fees received was wrongly posted. I have transferred it into accounting charges. That's why यहाँ पे accounting charges आपका 6 लाख हो गए. It was before 1,50,000, तो हाफ ईयर का था, तो और हाफ ईयर का किया तो इट वाज 3 लाख. बट आईसीआई का भी दो आपने गलती से फीस में ट्रांसफर किया था, उसको अकाउंटिंग चार्जेस में कन्वर्ट करके 150 उसका भी 6 लाख यहाँ पे हमने ट्रांसफर किया. आफ्टर दैट वी हैव डन विद द एक्सपेंसेस ऑल्सो ओवर हियर. डेप्रिसिएशन देखा, जर्नल एक्सपेंसेस देखा, यहाँ पे एलआईसी भी था एक, एलआईसी को ट्रांसफर किया ड्राइंग में, एंड ड्राइंग हमेशा कैपिटल से डिडक्ट होता है. Okay, so we have done with all the expenses over here. So your net profit is, total net profit is 3,30,959. Clear? So now you have to do is just go on the balance sheet
एंड अभी आपको बैलेंस शीट चेक करना है। तो बैलेंस शीट में क्या चेक करोगे, बैलेंस शीट में इतना ज्यादा होता नहीं है, आपको क्या चेक करना है मैं बता देती हूँ। जस्ट चेक, यहाँ पे आपको ना फिजिकली वेरिफिकेशन करना होता है एसेट का। दैट मीन्स यू हैव अ कंप्यूटर और नॉट फिजिकली, you have a furniture or not, because you have shown in the balance sheet, but sometimes ऐसा होता है कि आपके पास रियल में नहीं होता है और आपने एज ए एक्सपेंसेस के लिए और ऐसा आपने यहाँ पे दिखा दिया। सो जस्ट क्रॉस चेक आपको करना होगा, फिजिकली वेरिफिकेशन करना होता है कि कंप्यूटर आपके पास है या नहीं है, फर्नीचर आपके, मतलब चेक क्या कर रहे हो, यही तो रिकंसाइल करना है हमको यहाँ पे, चेक भी तो यही करना है ना हमको। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे वी हैव डन विद द कंप्यूटर, वी हैव अज्यूम करने का कि हम लोग ने चेक कर लिया है कंप्यूटर बरोबर है, फर्नीचर बरोबर है, क्योंकि इसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया ना ओपनिंग बैलेंस देख के। दैट मीन्स फिक्स एसेट इज ओके, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट में, in the investment side there is a investment you have done with the bank, that is fixed deposit. You have made the account, you have deposited in the fixed deposit in the bank. So fixed deposit with the bank, that is 50,000 you have it deposited, just enter that account. There is no transaction, यहाँ पे आपने ओपनिंग बैलेंस में बताया है, मतलब ये पहले से ही चलता आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस में दिख रहा है, मतलब आपको क्या दिख रहा है, पहले से ही है ये मेरा, अभी करंट ईयर का नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ आईटीसी, वी हैव डन विद दिस आल्सो। आई हैव मेड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹32,000, बट फ्रॉम दैट 32,000 आई गॉट द ₹2,000 रिफर as a dividend, but it's not my dividend income, it's my investment income, so I have transfer into this. So net investment मेरा कितना हुआ, 30,000 मेरा net investment हुआ। Okay, clear with this? Okay, so last next is you have to check your data balance, that is closing stock. There is no closing stock in your account. You have to check your debtor account. See यहाँ पे debtor में आपको क्या क्या मिलेगा, जो हमने सेल्स में चेक किया, डेटर में तो वही मिलेगा ना। आईसीए का अमाउंट पेंडिंग है देखो 1,50,000 का, बिकॉज आई हैव पास दिस एंट्री। आईसीए एजुकेशन का डुप्लीकेशन एंट्री पास किया था, याद आ रहा है, आई हैव पास द डुप्लीकेशन एंट्री अल्ट 2 करके। Yes. सो मैंने जस्ट जर्नल एंट्री पास किया है यार, मेरा पेमेंट में रिसिप्ट नहीं पास कर सकती हूँ। आई हैव जस्ट अकाउंटिंग चार्जेस, मैंने उसको रिमेनिंग है वो बताया, मुझे आया नहीं है अभी तक। क्लियर? सो उसके बाद जेके ट्रेडिंग, ये हम लोग ने ऑडिट फीस में देखा था, नील टी हाउस ऑडिट फीस में देखा है, नीतू ट्रेडिंग कंपनी ऑडिट फीस में देखा था। फिर पीकेपी लिमिटेड मेरा ये मैंने जो नेक्स्ट हाफ का एंट्री पास किया था अकाउंटिंग चार्जेस में इन द नेक्स्ट हाफ फ्रॉम द अक्टूबर टू मार्च। PKB Limited, it was receivable. So this all amount was receivable. This is all amount is receivable from your customer. So at the end of the year, just call your customer to each and every one and just ask whether how much balance is there or not. In the reconciliation हम लोग ने स्टार्टिंग में किया था, फर्स्ट टॉपिक में reconciliation हम लोग कैसे करते थे डेटर के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटर के हिसाब से तो आपको हर कस्टमर को फोन करके पूछना पड़ेगा, जैसे कि आईसीए एजुकेशन, जस्ट कॉल टू आईसीए एजुकेशन एंड आस्क देम whether you are, because it's 1,50,000 is receivable from them. So वो लोग भी वही बोल रहे हैं कि आप पेबल है 1,50,000, so you have to check their cross check यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। समझ में आया? मतलब टू ईच एंड एवरीवन आपको कॉल करके कंफर्म करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। सो ये बरोबर आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो रियल लाइफ रहेगा तो आपको कॉल करके कंफर्म करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, सर व्हेन यू आर गिविंग दिस पेमेंट, कभी दे रहे हो यार पैसा, वो पूछ के आप बात कर सकते हो। कैश इन हैंड, आपके पास कितना फिजिकली कैश हैंड में है आपके पास, वो आप चेक कर सकते हो। बैंक बैलेंस का तो आपको स्टेटमेंट होगा आपके पास, यू आर हैविंग योर स्टेटमेंट इन योर हैंड, तो आप वो चेक कर सकते हो बैंक स्टेटमेंट। सो यहाँ पे इनके पास एचडीएफसी का बैंक है, सो वो डिटेल आपको पता चल गया कि जो भी ट्रांजेक्शन है ये सब हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, जो भी हम लोग ने एंट्री पास किया होगा। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है वो बैंक से किया होगा, पेमेंट किया है वो बैंक से किया है, सो आपका वो सब एंट्री आपका यहाँ पे मैच हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आफ्टर दैट प्रीपेड मेंबरशिप फीस, ये तो हमने ही क्रिएट किया है, प्रीपेड मेंबरशिप 1,500 करंट का ही है, दिख रहा है 1,500, ये हम लोग ने करंट ईयर में प्रीपेड बोला है एंड ये करंट ईयर का एक्सपेंसेस है। और ये 1,000 जो हम लोग ने लास्ट इन द मंथ ऑफ मार्च आई हैव पास दिस एंट्री 1,000 का, ये 1,000 किधर का है, फ्रॉम द अप्रैल टू सितंबर का आप बोल सकते हो। ये 1,500 जो है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का है। आई हैव पेड इन द सितंबर, सो आई हैव पास द एंट्री इन द सितंबर मंथ, that is 1,500, but 1,500 for 6 months only. So what about before 6 months, that is April to September?
सो दैट बिफोर अप्रैल से सितंबर का ये 1000 ये रहा जो हम लोग ने लास्ट ईयर का प्रीपेड था तो उसको करंट ईयर में कन्वर्ट किया मेंबरशिप फीस में F7 में एंट्री पास करके। क्लियर हुआ? सो वी हैव डन विद दिस, तो आपको इससे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट दिस इज द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, हमने ही क्रिएट किया ये आउटस्टैंडिंग। 22,000 मेरा इंक्रीमेंट का सैलरी एंड 8,000 मेरा इंक्रीमेंट का रेंट, तो 30,000 मेरा टोटल हो गया, दिख रहा है? सो ये एंट्री तो हमने ही पास Yes. किया है, सो ये वापस चेक करने की जरूरत नहीं है। सो यू हैव टू क्लोज दिस अकाउंट। सो देयर इज अ 2 पॉइंट्स यू हैव टू सी ओवर हियर, दैट इज ड्राइंग, दैट इज 12,000 नेगेटिव है। सो ये 12,000 है। सी नॉर्मली क्या होता है, अभी मेरा फाइनलाइजेशन तो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, तो आपको इसका कॉपी देना पड़ेगा कस्टमर को। सो व्हेन यू गिव यू द दिस कॉपी टू द कस्टमर ना, यू हैव टू रिमेंबर दिस। यहाँ पे ना ये अच्छा नहीं दिखता, जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे, जब आप इसका प्रिंट आउट करोगे तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। सो नॉर्मली कैसा होगा, प्रीव्यू जब आपको आएगा सो वो नेगेटिव दिखता है, ठीक है? सो नेगेटिव दिखेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो 12,000 है उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कौशिक में, मतलब जो उसका ओनर रहेगा, दैट इज कौशिक कुमार शाह जो है वो ओनर है, तो आपको उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? सो आप लोग ट्रांसफर कैसे करोगे, यू हैव टू पास द F7 में एक एंट्री पास करने का, एंटर 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 एल्ट आए F7 में जाने का और एंट्री पास करना है। अभी मुझे ड्राइंग ट्रांसफर करना है, आई हैव टू ट्रांसफर द ड्राइंग बैलेंस इन द कौशिक शाह कैपिटल अकाउंट। व्हाट शुड बी द एंट्री विल बी? Party to drawings. Yes, that is Kaushik, your Kaushik Kumar Shah. That is your capital account. That is your proprietor. 12,000 your drawing amount. Buy नहीं आएगा, 2 आएगा. That is drawing. 12,000. Because I have passed this entry. Because capital account is always a liability and liability account always shows a credit balance. But Credit you balance. have to deduct the drawing amount from your capital account. So when you are deducting it, you have two options as I told you. You can deduct it or minus it, or you can give the opposite effect. So मैंने आपको पहले ही बताया हम लोग opposite effect देते हैं. So I gave you the opposite effect over here. That is Kaushik Kumar Shah debited to the 12,000 rupees and to drawing that is 12,000 rupees credited. So now you can see there is a drawing balance called 0. Current balance कितना हो गया? 0 हो गया. 0. Yes. So just change the date over here, that is F2 on 31st March. March. Drawing transferred to capital account. Because proprietor जो है वो capital account ही है ना. So drawing transferred to capital account. And just change the date over here. Now you can see the balance sheet over here. That is drawing नील हो गया आपका, बिकॉज वो क्या किया, कौशिक में से डिडक्ट हो गया, 2,63,000 में चला गया वो. क्लियर? ओके, सो वी हैव डन विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी हैव डन विद द बैलेंस शीट ऑल्सो. सो यहाँ पे फाइनलाइजेशन हमारा क्लियर होता है. मतलब अगर किसी ने आपको डेटा दिया, सो आप फाइनलाइज कैसे करोगे? सो आपको ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन चेक करना है. अगर आपके पास फिजिकली एसेट है तो उसका डेप्रिसिएशन आएगा, वो आपको चेक करना है. अगर आपने किधर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका इंटरेस्ट आया है या नहीं, वो आपको चेक करना है. हमने चेक किया क्या? नहीं किया. मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, यू हैव मेड अ इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड इन द बैंक, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक ऑफ ₹50,000. दैट मीन्स अगर मैं मेरे ईयर में अगर फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट, मुझे फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट तो आना चाहिए था, मैंने अगर फिक्स डिपॉजिट किया है बैंक के साथ, so I must got the interest also ना. So interest कहाँ पे दिखता है? इंटरेस्ट P&L में दिखता है, तो जस्ट गो ऑन द P&L साइड एंड ओपन इट. हाँ, आपने देखा क्या किधर भी P&L में, P&L के क्रेडिट साइड में किधर भी आपको इंटरेस्ट दिखा, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ऐसा कुछ? क्रेडिट साइड में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मेरा इनकम रहेगा वो. बट इंटरेस्ट ऑन FD मुझे किधर भी दिखा नहीं. दैट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस. 1 सेकेंड. हैव इन्वेस्टेड इन द बैंक, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्ट किया है तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट आना चाहिए.
लेकिन आई हैव सीन द क्रेडिट साइड ऑफ द P&L साइड, बट आई हैव नॉट गेट दिस. सो अभी तक मुझे आया नहीं है. दैट मीन्स ये आ सकता है. अमाउंट इज रिसीवेबल. सो जैसे हम लोग ने सैलरी और रेंट के लिए हम लोग ने आउटस्टैंडिंग कैसे बताया था यहाँ पे, I have not paid this, but I have passed the entry that it's a payable amount, right? Yes. मुझे पता है, बट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा. फिक्स डिपॉजिट के टाइम पे आपको पता तो है कि आपने फिक्स डिपॉजिट किया है. दैट मीन्स यू विल रिसीव अ इंटरेस्ट. इट्स रिसीवेबल फॉर मी, so it's receivable for you. So just make a entry, just pass down the entry that it's receivable for you. So आपको यहाँ पे JV पास करना पड़ेगा. So just enter and alt I over here. That is journal entry पास करना पड़ेगा. क्या एंट्री पास करोगे? Just change the date on 31st March. क्या एंट्री आएगा? Amount is receivable. Interest amount is receivable. So what entry will become over here? Amount you have not received yet. It will receivable from interest. So क्या एंट्री पास करोगे आप लोग? So एंट्री आपको ये पास करना है. That is interest is receivable. Like interest is receivable ना. So you have to pass the entries that is accrued interest to interest amount. इंटरेस्ट रिसीवेबल को आप अक्रूड इंटरेस्ट भी बोल सकते हो. सो यहाँ पे आपके पास लेजर नहीं है. सो यू हैव टू क्रिएट अ लेजर ओवर हियर. दैट इज अक्रूड इंटरेस्ट. अंडर किस में जाएगा ये अक्रूड इंटरेस्ट?